Starting with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, welcome to the Quick Learn Academy by Arusa Iram. In today's lecture, we will cover the chemistry class 9th, chapter number 6. Its complete textbook exercise questions. Dear students, before starting this video, if you have not yet subscribed to my channel, then do subscribe my channel, which is Quick Learn Academy by Arusairam, and also hit the bell icon so that you can get the latest updates on the go. Dear students, सबसे पहले बात कर लेते हैं टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज objective type questions of chapter number 6 of chemistry class 9th. The first MCQ is mist is an example of solution. डिफरेंट टाइप के हम सॉल्यूशंस को जो है बुक में पढ़ते हैं. एज वी ऑल नो के चैप्टर इज़ रिलेटेड टू द सॉल्यूशन लाइक liquid in gas, gas in solid, solid in gas, gas in solid. तो डियर स्टूडेंट्स, मिस्ट जो है ये एग्जांपल है लिक्विड इन गैस की. सो आर करेक्ट ऑप्शन इज़ ए. सेकेंड MCQ इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ लिक्विड इन सॉलिड सोल्यूशन. लिक्विड इन सॉलिड कौन सा सोल्यूशन है? इट्स करेक्ट ऑप्शन इज़ बी, विच इज़ बटर. थर्ड MCQ इज़ कंसनट्रेशन इज़ द रेशो ऑफ. कंसनट्रेशन किस चीज़ की रेशो है? इट्स ऑलवेज द रेशो ऑफ सल्यूट टू द सोल्यूशन. मीन्स के हम लोग जो भी चीज़ बनाना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल in a glass of water, if we put 1 tablespoon of sugar, then sugar will be the solute, and the whole mixture of sugar in water is a solution. तो जब हम इन दोनों की रेशो लेंगे, it will be defined as the concentration. So our correct option is B, which is solute to the solution. Fourth MCQ is which of the following solution contains more water? Its correct option is D, which is 0.25 molarity. Fifth MCQ is a 5% weight by weight sugar solution means that. डियर स्टूडेंट्स, वेट बाय वेट का मीनिंग है कि आपने जो सल्यूट की अमाउंट लेनी है, इट विल बी इन ग्राम्स एंड सॉल्यूशन जो है वो भी ग्राम में लेंगे. सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज़ बी, विच इज़ 5 ग्राम ऑफ शुगर dissolved in 100 gram of water. 6 MCQ is if the solute forces are strong enough than those of the solute solvent forces. The solute, अगर solute forces strong होंगी solute solvent की निस्बत, तो क्या होगा? देन द सल्यूट डिज़ोल्व स्लोली. ऐसा अगर होगा तो हमेशा सल्यूट आहिस्ता से मिक्स होगा सोल्यूशन के अंदर. 7 MCQ इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल शो निग्लिजिबल इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इट्स सॉलिबिलिटी. 7 MCQs का जो करेक्ट ऑप्शन है इट्स डी, विच इज़ NaCl. टेम्परेचर का कम इम्पेक्ट होता है NaCl का फॉर द stability. 8 MCQ is which one of the following is heterogeneous mixture. heterogeneous mixture जो है वो milk of magnesia होता है. its correct option is C. 9 is Tyndall effect is shown by. Tyndall effect को dear students ये हम जेली, इसकी बेस्ट एग्जांपल है. हम जेली में थिंडल इफेक्ट के फिनोमिना को देख सकते हैं. 10 MCQ इज थिंडल इफेक्ट इज़ ड्यू टू. थिंडल इफेक्ट कब शो होता है? जब भी बीम ऑफ लाइट स्कैटरिंग का फिनोमिना शो करती है. सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज सी, विच इज़ स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट. 11 MCQ इज़ इफ़ 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल इज़ डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर इट इज़ कार्ड. अगर 10 सेंटीमीटर क्यूब मीन्स के हम सल्यूट की अमाउंट भी सेंटीमीटर क्यूब में ले रहे हैं, और जो सॉल्वेंट है इसकी ग्राम में, तो डियर स्टूडेंट्स इट विल बिकम एज सल्यूट ओवर सॉल्यूशन सॉल्वेंट, विच इज़ वॉल्यूम बाय वेट.
So its correct option will be C. 12 MCQ is when a saturated solution is diluted it turns into, जब भी saturated solution को आप dilute करते हैं तो ये unsaturated solution बन जाता है. Its correct option is D. 13 MCQ is molarity is the number of moles of solute dissolved in. molarity की definition में आपने पढ़ा था कि ये number of moles of solute जो कि 1 decimeter cube of solution में जाके dissolve होते हैं इसे कहा जाता है molarity. So its correct option is D. Dear students, ये थे objective type questions. Now we will cover the subjective type questions, and the first short is why suspension and solution do not show Tyndall effect while the colloid show. Tyndall effect का फिनोमिना जो है वो सिर्फ कोलॉइड में क्यों देखने में आता है जबकि सस्पेंशन और सॉल्यूशन में हम नहीं देख सकते. तो डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर यही है कि सस्पेंशन में पार्टिकल्स बहुत बड़े होते हैं जबकि सॉल्यूशन में बहुत स्मॉल होते हैं. तो लेकिन जो कोलॉइड है इसमें इन बिटवीन सिचुएशन होती है जिसको इजीली, जिसे हम पार्टिकल्स कोलॉइड में इस तरह के बहुत बड़े तो नहीं होते जिनको हम आम आंख से देख सकें, लेकिन ये स्कैटरिंग का फिनोमेना लाजमी शो करते हैं. दैट्स वाई जो थिंडल इफेक्ट है इसको जस्ट कोलॉइड में देखा जा सकता है, ना कि सस्पेंशन एंड सॉल्यूशन में. नाउ आई विल रीड इट्स होल आंसर एज suspension and solution do not show Tyndall effect because in suspension particles are so big that light is blocked and difficult to pass, but in solution particles are so small that they cannot scatter the rays of light, thus do not show the Tyndall effect. But colloids can show Tyndall effect because particles scatter the path of light, thus emitting the beam of light exhibit the Tyndall effect. Second short is what is the reason for the difference between the solution, colloids and suspension. डियर स्टूडेंट्स, इसका जो डिफरेंस है मेन यही है कि सोल्यूशन में पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, कोलॉइड में इन बिटवीन होते हैं, जबकि सस्पेंशन में बहुत बड़े पार्टिकल्स होते हैं. यही इसका मेन डिफरेंस है. नाउ आई विल रीड इट्स होल आंसर एज द डिफरेंशिएशन बिटवीन द सॉल्यूशन, colloid and suspension is based upon the particle size. In colloidal solution the particle size is intermediate between solution and suspension. सॉल्यूशन में पार्टिकल्स का साइज़ छोटा होता है, सस्पेंशन में पार्टिकल का साइज़ बहुत बड़ा होता है, जबकि कोलॉइड के अंदर जो है वो इन बिटवीन होता है. डैट इज़ the main reason for the difference between the solution, colloid and suspension. Third short is why does not the suspension form homogeneous mixture. suspension में हमेशा homogeneous mixture क्यों नहीं बनता. डियर स्टूडेंट्स, पहली बात तो ये कि पार्टिकल्स बहुत बड़े होते हैं, इनका साइज़ बहुत बड़ा होता है और थोड़े टाइम के बाद ये अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी नीचे बैठ तो जाते हैं, लेकिन ये होमोजीनियस मिक्सचर फिर भी नहीं बना पाते. नाउ आई विल रीड इट्स होल आंसर एज इन सस्पेंशन पार्टिकल रिमेन्स अनडिजॉल्व ड्यू टू देयर बिग साइज. आफ्टर सम टाइम पार्टिकल्स सेटल डाउन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, देयरफॉर सस्पेंशन डज नॉट formed a homogeneous mixture. Fourth short is how will you test whether the given solution is colloidal solution or not. हम कैसे बता सकते हैं कि कोई भी solution है वो colloidal solution है या नहीं है. तो डियर स्टूडेंट्स, उस ऐसे solution के ऊपर beam of light को जो है वो फॉल कराया जाता है, देखा जाता है कि लाइट स्कैटर हो रही है या नहीं हो रही. अगर तो स्कैटरिंग हो रही है इट्स मीन दैट इट्स कोलॉइडल सॉल्यूशन, अदरवाइज इट इज़ नॉट. फिफ्थ शॉर्ट इज क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू द ट्रू एंड कोलॉइडल सॉल्यूशन: ब्लड, स्टार्च, ग्लूकोज, टूथपेस्ट, कॉपर सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट. तो आपने दरमियान में लाइन लगानी है, एक तरफ ट्रू सॉल्यूशन, दूसरी तरफ कोलॉइडल सॉल्यूशन. ग्लूकोज सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट, ये सब ट्रू सॉल्यूशन है जिसमें अच्छी तरह से जो है वो सल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, जबकि ब्लड, टूथपेस्ट और स्टार्च जो हैं ये कोलॉइडल सॉल्यूशन है जिनमें पार्टिकल्स कम्प्लीटली जो हैं वो मिक्स नहीं होते बल्कि कुछ ना कुछ हद तक रह जाते हैं जिन्हें हम आम आँख से नहीं देख सकते. फिर हम ऊपर लाइट को फॉल करा के स्कैटरिंग ऑफ लाइट से थिंडल इफेक्ट
को देखते हैं एंड दे ऑल एग्जिबिट द फिनोमिना ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। 6 इज़ वाई वी स्टीर पेंट थॉरोली बिफोर यूजिंग। हम पेंट्स को बार बार क्यों हिलाते हैं यूज़ करने से पहले? क्योंकि पेंट्स जो हैं वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं और इसमें पार्टिकल्स अनडिज़ोल्व्ड होते हैं। तो थोड़ा टाइम अगर आप पेंट अप्लाई करने से पहले उसको मिक्स नहीं करेंगे तो पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे और वो अच्छे तरीके से पेंट नहीं हो पाएगा। दैट्स वाई वी यूजुअली यूज टू स्टिर thoroughly the paint before using it. 7 short is which one of the following will scatter light and why? Sugar solution, soap solution और milk of magnesia। हमने बताना है कि इनमें से कौन सा जो सोल्यूशन है वो लाइट की स्कैटरिंग को शो करता है और क्यों करता है। पहला सोल्यूशन है सोप सोल्यूशन। तो डियर स्टूडेंट, सोप सोल्यूशन जो है वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट को शो करता है क्योंकि ये कोलॉइडल सॉल्यूशन है और इसमें पार्टिकल्स ना तो बहुत छोटे होते हैं सॉल्यूशन की तरह, ना सस्पेंशन की तरह बहुत बड़े होते हैं, बल्कि इन बिटवीन होते हैं। नेक्स्ट इज़ द शुगर सॉल्यूशन। डियर स्टूडेंट, शुगर सॉल्यूशन जो है एक ट्रू सॉल्यूशन है जिसमें पार्टिकल्स अच्छी तरह से सल्यूट सॉल्वेंट के अंदर जो है वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है, तो इसमें स्कैटरिंग का फिनोमिना नहीं देख सकते। नेक्स्ट इज़ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है ये एक सस्पेंशन है, इसमें पार्टिकल्स बहुत बड़े होते हैं और इतने बड़े होते हैं कि ये आने वाली लाइट को ब्लॉक कर देते हैं, आगे पास आउट नहीं होने देते। दैट्स वाई दे डू नॉट एग्जिबिट द स्कैटरिंग और थिंडल इफेक्ट। एंड now we'll discuss its 8 short, which is what do you mean by like dissolve like dissolve like का क्या मीनिंग है, इसकी एग्जांपल्स देनी है। इसका मीनिंग यही होता है कि पोलर सब्सटेंसेस जो हैं वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर जाके डिज़ोल्व होते हैं और नॉन पोलर सब्सटेंसेस नॉन पोलर में जाके डिज़ोल्व होंगे। लाइक NaCl एक पोलर है, वाटर भी पोलर है, पोलर में जाके जो है वो इजीली डिज़ोल्व हो जाएगा। और जबकि बेंजीन नॉन पोलर है तो ये नॉन पोलर के साथ जाके मिक्स होगा, ना कि पोलर के साथ। इसे ही कहा जाता है दैट इज़ द लाइक डिज़ोल्व लाइक। 9 शॉर्ट इज़ हाउ डज द नेचर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट अफेक्ट द सॉलिबिलिटी। डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर यही है कि सॉल्युबिलिटी हमेशा डिपेंड करती है सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन पे। अगर तो अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होती हैं तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं वो वीकर होती हैं तो सॉल्युबिलिटी जो है वो बहुत कम होती है। Now I'll read the whole answer of this question. Number 9 is solubility depend upon the solute solvent attraction. If the attractive forces between the solute are stronger, the solubility is greater. If the attractive forces become weaker in solute, there will be greater solubility. If the attractive forces between the solute particles are stronger than the solute remain insoluble and solution is not formed. 10 short is how can you explain the solute solvent interaction to prepare the NaCl solution। इसमें आपने कम्प्लीटली एक्सप्लेन करना है कि सल्यूट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन क्या होता है जब आप NaCl का सोल्यूशन बनाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, NaCl को जब भी पानी के अंदर डिज़ोल्व किया जाता है तो बहुत तेज़ी के साथ ये डिज़ोल्व हो जाता है, क्योंकि पानी भी पोलर है और NaCl भी पोलर है। पानी के ऊपर भी HOH आइंस होते हैं, जबकि वाटर के अंदर सॉल्ट के अंदर जो कॉमन सॉल्ट है NaCl विच इज़ सोडियम क्लोराइड, इसके ऊपर भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होते हैं। पॉजिटिव एंड ऑफ जो वाटर है वो लाइक वाटर है HOH, वाटर का पॉजिटिव टर्मिनल सॉल्ट के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जाके अट्रैक्ट हो जाएगा, मींस HCl के साथ जाके मिलेगा और वाटर का OH जो है वो Na के साथ जाके मिलेगा। इस तरह से दोनों ऑपोजिट चार्जेस की जो है वो अट्रैक्शन होगी एंड दे विल गेट ईजिली डिज़ोल्व बाय यूजिंग दिस फिनोमिना ऑफ लाइक डिज़ोल्व लाइक। और हम देखते हैं कि बहुत
जल्दी से आप जब भी नमक को, सोडियम क्लोराइड को पानी के अंदर डालते हैं, सल्यूट को सॉल्वेंट में डालेंगे तो पानी, नमक वाला जो सोल्यूशन है वो बहुत तेज़ी के साथ और आसानी के साथ बन जाता है। उसके पीछे यही फिनोमेना होता है। Now I'll read its whole answer as when NaCl is added in water, it dissolves readily because the attractive forces between the ions of NaCl and polar molecules of water are strong enough to overcome the attractive forces between Na positive and Cl negative in solid NaCl crystal. In this process, positive end of the water is oriented toward the Cl and the negative end of the water dipole is attracted toward the Na positive ion. These ion dipole attraction between the Na positive and water molecule, Cl negative and water molecule are so strong that they pull these ions from their positions in a crystal and thus NaCl get dissolved. 11 short is justify with an example that solubility of salt increases with the increase in temperature. टेम्परेचर के बढ़ाने से कैसे जो है हम सॉलिबिलिटी का फिनोमिना ज़्यादा कैसे देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो सॉलिबिलिटी है इट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। आप अगर ज़्यादा टेम्परेचर कर देंगे तो ज़्यादा तेज़ी के साथ जो हैं वो आयंस ऑफ सल्यूट टूटना शुरू हो जाएंगे, और वो जितनी तेज़ी के साथ टूटेंगे उतनी ही तेज़ी के साथ मिक्सिंग होना स्टार्ट हो जाती है। नाउ आई रीड इट्स होल आंसर एज solubility of some salt which are usually ionic in nature increases with the increase in temperature for such solute. It means that heat is required to break the attractive forces between the ions of solute. This process is called endothermic। ही ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है उसे कहा जाता है एंडोथर्मिक, और जिसमें हीट जो है रिलीज़ हो रही होती है उसे कहा जाता है एक्सोथर्मिक। क्योंकि यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग दिस एज एंडोथर्मिक प्रोसेस। फॉर एग्जांपल, solubility of KCl, KNO3 can be enhanced by increasing the temperature। 12 शॉर्ट इज़ व्हाट डू यू मीन बाय वॉल्यूम? बाय वॉल्यूम परसेंटेज इसका क्या मीनिंग है? इसका यही मीनिंग है कि आप जो है सल्यूट जिसका यूनिट सेंटीमीटर क्यूब में ले रहे हैं उसको आप सॉल्यूशन के अंदर जिसकी वैल्यू 100 सेंटीमीटर क्यूब है उसमें जाके डिज़ोल्व करेंगे। तो जब आप ये दोनों यूनिट सल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्यूशन दोनों के सेंटीमीटर क्यूब यूनिट लेते हैं तो इसे कहा जाता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। और परसेंटेज तब आता है जब आप उस वैल्यू को 100 के साथ जाके मल्टीप्लाई करा देते हैं। नाउ आई विल रीड द होल answer of this question number 12. It is the volume in centimeter cube of solute dissolved in 100 centimeter cube of solution. For example, 30% of alcohol solution means 30 centimeter cube of alcohol dissolved in sufficient amount of water so that total volume of the solution become 100 centimeter cube. Its formula is volume by volume percentage, which is equal to the volume of solute in centimeter cube over volume of solution in also centimeter cube multiplied by 100. Dear students, now we will discuss the most important long questions of chapter number 5, and the first long is what is the saturated solution and how it is prepared. Second is differentiate between dilute concentrated with the common example। इसमें आपने dilute और concentrated की एक एग्जाम्पल देनी है कॉमन, उसके थ्रू इसको एग्जिबिट करना है। थर्ड इज़ how explain how dilute solution are prepared from the concentrated solution। molarity इसका फॉर्मूला आपने प्रिपेयर करना है। जनरल प्रिंसिपल ऑफ सॉलिबिलिटी इसको प्रिपेयर करना है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्टेबिलिटी क्या होते हैं, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोलॉइड क्या हैं, और 5 करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सस्पेंशन। डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह इन द कमिंग लेक्चर आई विल आल्सो cover the numerical questions of chapter number 5 of chemistry। Dear students, I hope you all like my video. If you like my video, then do like, share, comment and subscribe to my channel, which is Quick Learn Academy by Arusa Iram, and thank you so much for listening.